السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 30 جنوری 2024 ہے۔ اسلامی تاریخ کے حساب سے آج 18 رجب 1445 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ دہلی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر کوہر کی گہری چادر کی وجہ سے پروازوں کی خدمات میں خلل پڑا ہے، جس نے آج منگل کی صبح قومی دارالحکومت کے کچھ حصوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ دہلی NCR کے علاقے کو گھیرے ہوئے کوہر نے بہت سے علاقوں میں قوت نظر کو کم کر دیا ہے۔ ملک کے کچھ حصوں میں کوہر کی تہہ کے بعد کئی گھریلو اور بین الاقوامی پروازیں مقررہ وقت سے پیچھے چل رہی ہیں۔ دہلی ہوائی اڈے نے آج منگل کو ایک ایڈوائزری جاری کی، جس میں کہا گیا ہے کہ CAT 3 کیٹیگری کے معیار پر پورا نہ اترنے اور ٹیک آف کے دوران پروازوں میں خلل پڑ رہا ہے۔ دہلی ایئرپورٹ ایڈوائزری میں یہ بھی درخواست کی گئی ہے کہ مسافر تازہ ترین معلومات کے لیے ایئر لائن سے رابطہ کریں۔ ایک گھنی کوہر نے منگل کی صبح قومی دارالحکومت کے کچھ حصوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور حد نگاہ پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا ہے، جس سے مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آج منگل 30 جنوری کو بابا قوم مہاتما گاندھی کی یوم وفات ہے، جنہیں اس دن 1948 میں نتھورام گوڈسے نے ملک کو برطانوی راج سے آزادی حاصل کرنے کے صرف 5 ماہ اور 15 دن بعد قتل کر دیا تھا۔ مہاتما گاندھی کی 76ویں برسی کے موقع پر کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے بہار کے ارریا میں بھارت جوڑو نیائے یاترا کے دوران مہاتما گاندھی کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا، ان کی تصویر پر پھول چڑھائے۔ دوسری طرف کانگریس کے دیگج لیڈروں نے بھی مہاتما گاندھی کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے متنبہ کیا ہے کہ اگر ایک بار پھر مودی اقتدار میں آ گئے تو یہ الیکشن ملک کا آخری الیکشن ہوگا۔ اڑیسہ کے بھونیشور میں کانگریس کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ 2024 کے پارلیمانی الیکشن میں فتح حاصل کرنے کے بعد مودی ملک میں ڈکٹیٹرشپ کا اعلان کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ لوک سبھا انتخابات کے بعد اگر مودی اقتدار میں آئے تو ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہوگی، نہ جمہوریت بچے گی، نہ کوئی الیکشن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے لیے 2024 کا الیکشن ملک میں جمہوریت بچانے کے لیے ووٹنگ کرنے کا آخری موقع ہے۔ جھارکھنڈ میں جس طرح سیکورٹی میں غیر معمولی اضافہ کیا گیا ہے اور نئی دہلی میں ED جس طرح اچانک وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کی رہائش گاہ پہنچ گئی، اس کو دیکھتے ہوئے کسی بڑی کارروائی کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ہیمنت سورین کو 31 جنوری کو ED کے سامنے دوبارہ پیش ہونا ہے۔ اس سے قبل ہی ED سرگرم ہو گئی اور گورنر نے بیان دیا کہ وہ حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ضرورت پڑنے پر پل عبور کریں گے۔ اسے کسی بڑے قدم کی پیشگوئی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ریاست جھارکھنڈ میں قیاس آرائیوں کا بازار 27 فروری سے گرم ہے، جب وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین اچانک کسی پیشگی اطلاع کے بغیر دہلی کے لیے روانہ ہو گئے، جس کی وجہ سے جھارکھنڈ میں ان کے سرکاری پروگراموں کو منسوخ کرنا پڑا۔ اچانک دہلی میں ان کی رہائش گاہ پر ED کے افسر پہنچ گئے، مگر سورین وہاں بھی نہیں ملے۔ ان کی ایک کار کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ نریندر مودی حکومت نے اسٹوڈنٹ اسلامک موومنٹ آف انڈیا یعنی سیمی پر انسداد دہشت گردی قانون UAPA کے تحت پابندی میں 5 سال کی توسیع کر دی۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس یعنی قطعی عدم برداشت کی پالیسی کو جاری رکھتے ہوئے اسٹوڈنٹ اسلامک موومنٹ آف انڈیا سیمی پر پابندی میں مزید 5 سال کے لیے توسیع کر دی گئی ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق سیمی دہشت گردی کو ہوا دینے، ہندوستان کی خود مختاری و سالمیت کے لیے خطرہ پیدا کرنے اور نقص امن نیز فرقے وارانہ منافرت پھیلانے میں ملوث پائی گئی ہے۔ سیمی پر 2001 میں پہلی بار پابندی عائد ہوئی تھی، جس کے بعد اس میں مسلسل توسیع کی جا رہی ہے۔ بہار میں نئی حکومت بنتے ہی وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے اپنے وزیروں کے ساتھ کابینہ کی میٹنگ کی، جس میں 4 تجاویز کو منظوری دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی یہ قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہے کہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے اسمبلی اجلاس کب طلب کیا جائے گا۔ کابینہ نے اسمبلی اجلاس طلب کرنے کے لیے وقت کے تعین کا اختیار وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو سونپ دیا ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے قبل نئی حکومت موجودہ اسپیکر سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہتی ہے، جن کا تعلق لالو پرساد یادو کی پارٹی سے ہے۔ اس کے لیے ہی نتیش کمار کی نئی اتحادی پارٹی BJP نے اسپیکر اودھ بہاری چودھری کے خلاف عدم اعتماد کا نوٹس پیش کر دیا ہے۔ شاہی عیدگاہ مسجد کے معاملے کی سماعت سپریم کورٹ نے اپریل تک ملتوی کر دی۔ اس کے ساتھ ہی کورٹ نے مسجد کے سروے پر بھی اپریل تک کے لیے روک لگا دی۔ بھگوا عناصر کے ان دعووں پر کہ شاہی عیدگاہ مسجد کرشن جنم بھومی ہے، ہائی کورٹ نے ہندو فریق کی اپیل پر
कोर्ट कमिश्नर के जरिए मस्जिद के सर्वे का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते कबल इस पर उबूरी रोक लगा दी थी, जिसमें अप्रैल तक की तौसीक कर दी है। राजस्थान के हवा महल के बीजेपी रुकने असेंबली मक्कुन आचार्य के खिलाफ हिजाब पर काबिल एतराज तबसरा करने के मामले में बड़ी तादाद में सरकारी स्कूलों की तालिबात ने सुभाष चौक को घेर लिया, थाने के सामने जमकर नारेबाजी की और सड़क जाम कर दिया। तालिबात का इल्जाम है कि बाल मुकुंद आचार्य इनके स्कूल आए थे और इस दौरान हिजाब पर दिल आज़ार तबसरा किया। दारुलहुकूमत जयपुर के गंगापुल इलाके में वाक़ सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली तालिबात सड़कों पर उतर गई और सुभाष चौक थाने का घेराव किया। थाने का घेराव करते हुए इन तालिबात ने मुकामी एमएलए बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। दौरान एहतजाज तालिबात ने हिजाब हमारी शान है, नारा तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद की। तालिबात का इल्ज़ाम है कि जिस तरह से सालाना तकरीब के मौके पर हम लोगों ने मुकामी रुकने असेंबली बाल मुकुंद आचार्य को बुलाया था, लेकिन उन्होंने यहाँ आकर हमारे हिजाब के खिलाफ बातें की। इतना ही नहीं, उन्होंने तालिबात से जय श्री राम के नारे भी लगवाए। तालिबात ने कहा कि यह हमें क़तई मंजूर नहीं। उन्होंने कहा कि तालीम के मैदान में हिंदू मुसलमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। तालिबात के साथ साथ इनके अहले खाना भी बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर आए और कार्रवाई का मुतालबा करने लगे। इसी दौरान पुलिस के आला अफसरान मौके पर पहुंच गए। वाजरे के जयपुर के स्कूल के अंदर का वीडियो है, जहां हवा महल मेंबर असेंबली बाल मुकुंद आचार्य के जरिए हिजाब को लेकर तबसरे के बाद मुस्लिम तालिबात की मुखालिफत शुरू हुई है। स्कूल में मुनक़िदा प्रोग्राम के दौरान बाबा बाल मुकुंद आचार्य ने भारत माता की जय और सरस्वती माता की जय के नारे लगाए थे। इस दौरान कुछ तालिबात के जरिए नारा नहीं लगाए जाने पर आचार्य ने नाराजगी जाहिर की और हिजाब के ताल्लुक से दिल आज़ार तबसरा किया। बिहार हुकूमत से बाहर होने के अगले ही दिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर एक्शन लिया गया है। लालू प्रसाद यादव से पटना के ईडी ऑफिस में लैंड फॉर जॉब केस में सुबह 11 बजे से पूछताछ की गई। पूछताछ के लिए ईडी ने तकरीबन 50 सवालों की लिस्ट तैयार की थी। इनसे तकरीबन 9 घंटों तक तवील पूछताछ की गई। पीर की सुबह 11 बजे लालू प्रसाद यादव अपनी बड़ी बेटी मेंबर पार्लियामेंट मीसा भारती के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे थे। इसके बाद इन्हें दफ्तर के दूसरे मंजिल पर ले जाया गया और तकरीबन 11:30 बजे से तफ्तीश का सिलसिला शुरू हुआ। पूछताछ के लिए दिल्ली से ईडी दफ्तर से तकरीबन 1 डजन अफसरान की खुसूसी टीम पटना आई थी, जिसमें तफ्तीशी अफसर समेत दीगर अफसरान शामिल थे। पूछताछ के बारे में मीडिया में कोई ऑफिशियल इत्तला नहीं दी गई, लेकिन जराये के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक रेल के इस वक्त के वजीर लालू प्रसाद यादव के दौर 2004 से 2009 के दरमियान हुई जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले से मुंसलिक 50 से ज्यादा सवालात पूछे गए। कर्नाटक के मंडिया में सरकारी अराजी पर 108 फीट तवील खंभे पर लगे जाफरानी परचम को उतारे जाने के मामले को बीजेपी के जरिए फिरकावाराना रंग देने पर कांग्रेस के वजीर प्रियांक खड़गे ने सख्त रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि अगर इसे कौमी परचम, हिंदुस्तानी आइन और मुल्क की सालिमियत पसंद नहीं तो इसके लीडरान अपनी पसंदीदा जगह पाकिस्तान जा सकते हैं। बीजेपी के जरिए इस मामले पर टकराव की कैफियत पैदा किए जाने की कोशिशों पर उन्होंने मजीद कहा कि हम बीजेपी की साजिशों और चाल के सामने नहीं झुकेंगे, बल्कि हम इससे मौसर तरीके से निपटेंगे। आईटी के वजीर खड़गे ने आरएसएस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरएसएस की तरह इसकी तरबियत याफ्ता बीजेपी भी कौमी परचम से नफरत करती है। बीजेपी इसका एहतराम नहीं करने के बजाय तिरंगे से नफरत कर रही है। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर बीजेपी लीडरों की सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो आखिर इस कदर नाराज क्यों हैं। हुकूमत ने बगैर इजाजत के लहराए गए परचम को हटाकर तिरंगा लहराया, तो इस पर इस कदर चिरागपा होने का क्या मतलब है। उत्तराखंड के मदरसों में जल्द ही बच्चों को रामायण का कोर्स पढ़ाया जाएगा। 117 मदरसों में आइंदा सेशन से इसे नाफिज किया जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के सदर शादाब शम्स ने कहा कि वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले मदरसों में बच्चों को संस्कृत पढ़ाएंगे। इसके साथ ही रामायण भी पढ़ाई जाएगी, जिससे बच्चे अपने तहजीब से जुड़ सकेंगे। इससे कबल भी उत्तराखंड के मदरसों में बच्चों को संस्कृत पढ़ाने की बात भी कही गई थी। इस फैसले की उलमा की जानिब से जबरदस्त मुखालिफत देखने को मिली थी। वक्फ बोर्ड के सदर शादाब शम्स ने कहा कि उत्तराखंड में 415 मदरसे हैं, जिनमें से 117 मदरसे वक्फ बोर्ड के तहत आते हैं। उन्होंने कहा कि मदरसों में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात नबियों और पैगंबरों के बारे में जानकारी के साथ साथ राम के किरदार को भी जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, वक्फ बोर्ड के सदर शादाब शम्स के ख्यालात पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। क्या मदरसों के बच्चों को राम के किरदार को जानना चाहिए?
बॉलीवुड के रॉक स्टार अदाकार रणबीर कपूर को इस साल बेहतरीन अदाकार और आलिया भट्ट को बेहतरीन अदाकारा का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया, जबकि 12वीं फेल को बेहतरीन फिल्म करार दिया गया। ख्याल रहे कि बेहतरीन अदाकार के तौर पर शाहरुख खान और सनी देओल जैसे अदाकार, बेहतरीन अदाकारा के तौर पर दीपिका पादुकोण और बेहतरीन फिल्म के तौर पर जवान और पठान जैसी कामयाब फिल्में भी नामजद थी, लेकिन अवार्ड रणबीर, आलिया और 12वीं फेल के हिस्से में आए। गुजरात के गांधीनगर में 61वें फिल्म फेयर अवार्ड्स का इनेकाद अमल में लाया गया। रणबीर कपूर को फिल्म एनिमल के लिए बेहतरीन अदाकार का अवार्ड दिया गया, जबकि आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मिला। विधु विनोद चोपड़ा को 12वीं फेल के लिए बेहतरीन हिदायतकार के फिल्म फेयर एजाज से नवाजा गया। इसी तरह विकी कौशल को फिल्म डंकी के लिए बेहतरीन मुआवन अदाकार का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया, जबकि शबाना आजमी को फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में मुआवन किरदार के लिए अवार्ड से नवाजा गया है। तेलंगाना हुकूमत ने 2 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में गुज़िश्ता कई सालों से खिदमत अंजाम देने वाले 11 डायरेक्टर्स की खिदमत को फौरी असर से ख़त्म कर दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी सैयद अली मुर्तज़ा रिजवी ने इस सिलसिले में GORT 5 जारी किया। सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में अलल तरतीब 7 और 4 डायरेक्टर्स को साबिक़ हुकूमत ने मुकर्रर किया था और इनकी खिदमत में मुसलसिल तौसी दी जा रही थी। 2013-14 में बाज़ डायरेक्टर्स के तकर्रुरात किए गए और ये सिलसिला 2021 तक जारी रहा। जियो में कहा गया है कि महकमा बरक़ी में डायरेक्टर्स को इब्तिदा में 2 साल मियाद के लिए तकर्रुर किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद 2 साल की तोसी की जा सकती है। डायरेक्टर्स की मियाद 4 साल से ज़ायद नहीं हो सकती। साबिक़ हुकूमत ने डायरेक्टर्स का तकर्रुर करके इन्हें कवायद के बरखिलाफ तोसी दी। सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में जय श्रीनिवास रेड्डी का 27 नवंबर 2014 को डायरेक्टर्स ऑपरेशन तकर्रुर किया गया और वो 9 साल 2 माह की मुद्दत से बरकरार हैं। इसी तरह मज़ीद 10 डायरेक्टर्स पिछले 10 सालों से खिदमत अंजाम दे रहे थे, जिन्हें फौरी तौर पर बर्खास्त कर दिया गया है। तेलंगाना रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के साबिक़ सेक्रेटरी एस बालाकृष्णा के असातिज़ात की एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से तहकीकात के दौरान साबिक़ चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की अहलिया के नाम पर कीमती अराजी का मामला मंजर-ए-आम पर आया है। एंटी करप्शन ब्यूरो रंगारेड्डी जिले में सोमेश कुमार की अहलिया डॉक्टर ज्ञान मधुरा के नाम पर 25 एकड़ ज़रई अराजी की जांच की जा रही है, जिसकी मालियत तकरीबन 100 करोड़ बताई जाती है। रंगारेड्डी जिले के याचारा मंडल में अराजी से मुतालिक दस्तावेजात बरसरेआम पर आ चुके हैं। सोमेश कुमार जिस वक्त रेगुलेटरी अथॉरिटी सदरनशीन थे, उस वक्त बालाकृष्णा सेक्रेटरी थे। इसी मुद्दत में अथॉरिटी के मामलात में बेकायदगियों की शिकायत है। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की जानिब से तेलंगाना में ज़ात पात पर मबनी मरदूमशुमारी के ऐलान के बाद बजट इजलास में बिल पेश करने का फैसला किया गया। वज़ीर बहबूदी पसमानदा तबक़ात पूनम प्रभाकर को चीफ मिनिस्टर ने बिल की तैयारी की जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस क़ायद राहुल गांधी ने कौमी सतह पर ज़ात पात पर मबनी मरदूमशुमारी की तजवीज़ पेश की, जिसके बाद कांग्रेस ज़ेर इख्तिदार रियासतों में मरदूमशुमारी का फैसला किया गया। रेवंत रेड्डी ने हुकाम से कहा कि वो जल्द बिल का मसूदा तैयार करें, जिसे काबीनी इजलास में मंजूरी दी जाएगी। 1931 में बरतानवी हुकूमत ने मुल्क में मरदूमशुमारी के वक्त ज़ात पात पर मबनी आबादी की तफसीलात इकट्ठा की थी। इसके बाद से मुल्क में ज़ात पात पर मबनी मरदूमशुमारी नहीं की गई। कमज़ोर तबक़ात को हुकूमत की स्कीमात में मौसर नुमाइंदगी के लिए कांग्रेस ने कौमी सतह पर मरदूमशुमारी की तजवीज़ पेश की है। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस ने इंतखाबी मंशूर में ज़ात पात पर मबनी मरदूमशुमारी का वादा किया है। तेलंगाना में बरक़ी किल्लत और कटौती के मुतालिक सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के जरिए हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और भारत राष्ट्र समिति कायदीन इस सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे को हवा देते हुए रियासत में इंद्रम्मा राज्यम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और रियासती वजीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत में कांग्रेस के इख्तिदार हासिल करने के बाद अगर बरक़ी सरबराही का जायजा लिया जाए तो रियासत में साल गुज़िश्ता के मुकाबले में ज़्यादा बरक़ी सरबराह की गई है। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासती हुकूमत ने आइंदा मौसम गर्मा के दौरान बिला वक्फा मियारी बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाने के इक़दाम किए हैं और तेलंगाना के बेशतर तमाम अजला में जहां मौसम गर्मा के पेश नज़र महकमा बरक़ी की जानिब से मरम्मती काम जारी है, वहां कुछ वक्फे के लिए बरक़ी सरबराही मुनक़ता की जा रही है ताकि मौसम गर्मा के दौरान बरक़ी सरबराही को बेहतर बनाया जा सके। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि माह दिसंबर साल 2023 के दौरान महकमे की जानिब से रोज़ाना 207 मिलियन बरक़ी सरबराह की गई है, जबकि साल गुज़िश्ता इस मुद्दत के दौरान रोज़ाना 200 मिलियन यूनिट बरक़ी सरबराह की जा रही थी। उन्होंने बताया कि जारिया साल के आगाज़ से अब तक यानी 28 जनवरी 2024 तक के रिकॉर्ड्स का जायज़ा लिया जाए तो रियासत में रोज़ाना 242 मिलियन यूनिट
रोजाना बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाया गया है, जबकि साल गुज़श्ता माह जनवरी के दौरान 226 मिलियन यूनिट रोजाना सरबराही के इक़दाम किए गए थे। जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत को MLC मुंतखब होने पर मोहम्मद ग़यासुद्दीन खान ने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की, जिसकी वजह से शहर बल्कि सारे तेलंगाना में जोश खरोश पाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी बिलखुसूस वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अक़लियतों के हमदर्द व मिल्लत के दर्दमंद मुमताज़ शख्सियत को कानून साज कौंसिल के लिए चुना है। जनाब आमिर अली खान अवाम को बल्कि अक़लियतों के मसाइल को अमली जामा पहनाएंगे। हल्का असम्बली मुशीराबाद भोलकपुर डिवीज़न के एक वफ़द जिसकी क़यादत एस मोहम्मद वाजिद हुसैन साबिक़ा रुकन बल्दिया भोलकपुर व बल्दिया फ्लोर कांग्रेस पार्टी के हमरा आमिर अली खान को गवर्नर कोटे से MLC नामजद करने पर मुबारकबाद पेश की। न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान को गवर्नर कोटे में MLC इंतखाब पर शहर के और अजला से मुख्तलिफ शख्सियतों ने मुलाकात करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने रियासत के हर शहरी का डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल तैयार करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने इसके लिए दरकार इक़दाम करने पर जोर दिया। उन्होंने डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल कार्ड को यूनिक नंबर से मजबूत करने का भी मशवरा दिया। चीफ मिनिस्टर ने आज सेक्रेटरीट में महकमा सेहत के आला ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद करते हुए कहा कि हर शहरी के डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल की तैयारी से एमरजेंसी सूरत हाल में मुतालिका शख्स को मुनासिब इलाज करने की सहूलत होगी। उन्होंने हेल्थ प्रोफाइल कार्ड को आरोग्यश्री से मजबूत करने का भी मशवरा दिया। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर में रोजगार से मजबूत करने और नौजवानों को IT के शोबे में बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाइथन वेब डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके लिए आज शाम 30 जनवरी से शाम 5 बजे तक 7 बजे तक एक नए बैच का आगाज अमल में लाया जा रहा है, जो 5 दिनों के लिए मुफ्त रहेगा, जिसमें HTML, CSS, MySQL, Django, जावास्क्रिप्ट और पाइथन सिखाया जाएगा, जिसके मुकम्मिल कोर्स 45 दिन का होगा। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से इस्तेफादे के लिए दफ्तर सियासत पहुंचकर इस कोर्स में हिस्सा ले सकते हैं या फिर मज़ीद तफसीलात के लिए इन नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। नंबर है 9000191481 9393876978।